کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوف صرف وہم ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد کی تپتی دوپہروں اور خاموش راتوں کے بیچ کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں خوف اور جیتا جاگتا سانس لیتا ہے۔ آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب سے نہیں لی گئی، بلکہ یہ ان دیواروں کی گواہ ہے جنہوں نے انسانی ہوس اور تجسس کو عبرت میں بدلتے دیکھا۔ یہ کہانی ہے حیدرآباد کے اس قدیم شمشان گھاٹ کی، جہاں کی مٹی آج بھی ایک ادھورا قرض چکانے کا انتظار کر رہی ہے۔ حیدرآباد، سندھ کے قدیم شمشان گھاٹ کی ایک سچی داستان۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد کی تپتی ہوئی دوپہریں جتنی گرم ہوتی ہیں، اس کی راتیں اتنی ہی خاموش اور پراسرار ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ علاقہ جہاں شہر کا قدیم شمشان گھاٹ واقع ہے۔ یہ شمشان گھاٹ تقسیم ہند سے بھی پہلے کا ہے اور اس کی دیواریں اب بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کی مٹی میں آج بھی ان لوگوں کی چیخیں دفن ہیں جو غیر طبعی موت کا شکار ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 2014 کا ہے جب حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کے 3 دوستوں زاہد، نوید اور علی نے ایک ایسی غلطی کی جس کا خمیازہ انہیں پوری زندگی بھگتنا پڑا۔ زاہد ایک منچلا نوجوان تھا جو خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا۔ ایک رات ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے بات مافوق الفطرت چیزوں پر نکل آئی۔ زاہد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، میں آج رات 2 بجے شمشان گھاٹ کی دیوار پھلانگ کر وہاں سے مٹی لا سکتا ہوں۔ نوید اور علی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن بات انا پر آ گئی۔ آخر کار وہ تینوں اپنی بائک پر سوار ہو کر رات کے پچھلے پہر شمشان گھاٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شمشان گھاٹ کے قریب پہنچے، سڑک پر اسٹریٹ لائٹس غائب ہو گئیں۔ گھپ اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ بائک کی روشنی میں شمشان گھاٹ کا لوہے کا زنگ آلود گیٹ کسی دیو مالائی عفریت کا جبڑا لگ رہا تھا۔ زاہد نے ہمت دکھائی اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ نوید اور علی باہر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے۔ شمشان گھاٹ کے اندر قدم رکھتے ہی زاہد کو محسوس ہوا کہ وہاں کی فضا باہر کی نسبت بالکل مختلف تھی۔ وہاں سناٹا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی گنگناہٹ تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دبی آواز میں ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ زاہد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی تھیلی نکالی اور اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں حال ہی میں کسی کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ وہاں ابھی بھی راکھ گرم تھی اور فضا میں لکڑیوں کے جلنے کی بورچی بسی تھی۔ جیسے ہی زاہد نے مٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا، اسے محسوس ہوا کہ زمین تھوڑی سی لرز رہی ہے۔ اچانک اس کے کان میں ایک بھاری اور کھرکھری آواز آئی، جو چیز یہاں کی ہے اسے یہیں رہنے دو۔ زاہد ساکت رہ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں سوائے دھوئیں کے بادلوں کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ مٹی اٹھائی، اسے اپنے ٹخنوں پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ زاہد نے نیچے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ زمین کے اندر سے 2 خاک آلود ہاتھوں نے اس کے پیروں کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں لگ رہے تھے، ان کے ناخن لمبے اور کالے تھے اور کھال ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ زاہد نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اسی لمحے شمشان گھاٹ کے بیچوں بیچ لگے پرانے پیپل کے درخت سے ایک سایہ نیچے اترا۔ یہ ایک طویل قامت وجود تھا جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں اندھیرے میں 2 دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ وجود زمین پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ ہوا میں تیرتا ہوا زاہد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر کھڑے نوید اور علی کو جب 5 منٹ تک کوئی آہٹ نہ ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے زاہد کا نام پکارا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک شمشان گھاٹ کے اندر سے ایک ایسی وحشیانہ چیخ بلند ہوئی جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ زاہد کی چیخ تھی۔ نوید اور علی نے ہمت جمع کی اور ٹارچ جلا کر دیوار کے اوپر سے اندر جھانکا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ زاہد زمین پر گھسٹ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے گھسیٹ کر ان چیمبروں کی طرف لے جا رہی ہو جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ نوید اور علی نے جب زاہد کو اس طرح گھسٹتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن دوستی کا رشتہ خوف پر غالب آ گیا۔ دونوں دیوار پھلانگ کر اندر کودے اور زاہد کی طرف بھاگے۔ زاہد کا چہرہ خوف سے نیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں برفیلے ہاتھ اسے زمین کے اندر کھینچ رہے ہوں۔ نوید نے زاہد کے بازو پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی، جبکہ علی نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس وجود پر ڈالی جو زاہد کے قریب کھڑا تھا۔
रोशनी पड़ते ही वो सायानुमा वजूद एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी गलीज बो छोड़ गया जैसे कोई सदियों पुरानी लाश सड़ रही हो। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से जाहिद को उठाया और दीवार की तरफ भागे, लेकिन अब शमशान घाट का मंजर बदल चुका था। वो दीवार जो पहले महज 6 फुट ऊंची थी, अब उनको एक बुलंद व बाला पहाड़ की तरह नजर आने लगी। हर तरफ से हंसी की आवाजें आने लगे, जैसे कोई उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। अचानक शमशान घाट के कोने में मौजूद लकड़ियों के ढेर में खुद ब खुद आग भड़क उठी। इस आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि शमशान घाट के मुख्तलिफ हिस्सों से कई साए निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो साए इंसानी शक्लों में थे, लेकिन उनके जिस्म उदे जले और बदशक्ल थे। जाहिद, जो अब तक नीम बेहोशी की हालत में था, अचानक उठकर बैठ गया और एक ऐसी जबान में बुड़बुड़ाने लगा जो इन दोनों की समझ से बाहर थी। इसकी आवाज अब जाहिद की नहीं थी, बल्कि एक बूढ़े शख्स की गरजदार आवाज थी जो कह रहा था कि तुमने यहाँ की खामोशी को तोड़ा है, अब तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अली ने हिम्मत न हारी और अपने गिले में मौजूद एक कुरानी आयत का तावीज निकाल कर जाहिद के माथे पर रखा। जैसे ही तावीज जाहिद की जल्द से छुआ, इसके जिस्म से धुआं उठने लगा और वो एक जोरदार झटके के साथ साकित हो गया। इसी वक्त शमशान घाट के बाहर खड़ी उनकी बाइक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। ये एक इशारा था कि बाहर भी कुछ ठीक नहीं है। नवीद और अली ने जाहिद को कंधों पर लादा और पूरी कुव्वत लगाकर दीवार की तरफ एक आखिरी छलांग लगाई। इस बार वो कामयाब हो गए और सीधे बाहर सड़क पर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो शमशान घाट के गेट पर वही लंबा साया खड़ा उन्हें घोर रहा था, लेकिन वो गेट से बाहर नहीं आ रहा था। वो तीनों जैसे ही बाइक पर बैठे बाइक स्टार्ट होने में नखरे करने लगी। पीछे से कदमों की चाप करीब आ रही थी, जैसे कोई भारी बोझ घसीटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। आखिरकार बाइक स्टार्ट हुई और वो तेजी से वहां से भागे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घर पहुंचने के बाद जाहिद को तेज बुखार चढ़ गया और वो मुसलसल शमशान घाट के इसी पंडित का नाम लेने लगा जो 50 साल पहले मर चुका था। जाहिद के घर वालों ने देखा कि इसके पैरों पर उन हाथों के निशान अब भी मौजूद थे जिन्होंने इसे जकड़ा था, और वो निशान नीले नहीं बल्कि कोयले की तरह काले थे। अगले 3 दिन तक जाहिद ने न कुछ खाया और न कुछ पिया। वो बस दीवार को घूरता रहता और कभी कभी अचानक हंसने लगता। इसके घर वालों ने शहर के एक बुजुर्ग आलम को बुलाया। जब वो बुजुर्ग जाहिद के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने फौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और कहा कि इस कमरे में मौत की बो आ रही है। बुजुर्ग ने बताया कि जाहिद अकेला वापस नहीं आया, बल्कि शमशान घाट की एक ऐसी रूह इसके साथ चिमट कर आ गई है जो बरसों से तिश्ना थी। वो रूह जाहिद के जिस्म के जरिए दोबारा इस दुनिया का जायका चखना चाहती थी। बुजुर्ग ने जाहिद पर दम करना शुरू किया तो कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खिलने और बंद होने लगे और अलमारी में रखे बर्तन गिरने लगे। जाहिद का जिस्म बिस्तर से चंद इंच ऊपर उठने लगा और उसके मुंह से वही खौफनाक आवाज दोबारा निकली, ये मेरा है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की तो पूरे घर में एक चीख गूंजी जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई और फिर खामोशी छा गई। जाहिद बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। इसके जिस्म से वो कालापिन गायब होने लगा, लेकिन वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था। बुजुर्ग ने बताया कि इसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो मिट्टी जो इसने वहां से उठाई थी वो अब भी एक कर्ज की तरह इस पर वाजिब है। जब जाहिद को होश आया तो उसने बताया कि जब वो शमशान घाट के अंदर था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो, जहां जमीन आग की बनी हुई थी और मुर्दे इसे अपने साथ दफन करने की कोशिश कर रहे थे। इसने बताया कि वो लंबा साया दरअसल इस शमशान घाट का मुहाफिज था जो इन लोगों को सजा देता है जो वहां बेअदबी करते हैं। जाहिद की जान तो बच गई, लेकिन इस रात के बाद से वो कभी अकेला अंधेरे में नहीं रहा। आज भी अगर वो हैदराबाद के इस नए पिल के करीब से गुजरता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसे दूर से देख रहा है और शमशान घाट की वो मिट्टी इसे दोबारा पुकार रही है। मकामी लोग कहते हैं कि हैदराबाद के इस शमशान घाट में आज भी कुछ ऐसी जगहों पर घास नहीं उगती जहां जाहिद को घसीटा गया था। ये वाकया आज भी हैदराबाद के पुराने लोगों की जुबान पर एक इबरतनाक सबक के तौर पर मौजूद है कि कुछ जगहों की खामोशी का एहतराम करना ही जिंदगी की बका है। इस वाकये को गुजरे कई साल बीत चुके थे, लेकिन हैदराबाद के इस शमशान घाट की वहशत जाहिद के ताकुब से बाज न आई।
कहानी का तीसरा और सबसे भयानक मोड़ तब आया जब जाहिद की शादी तय पाई। जाहिद अब एक खामोश तब इंसान बन चुका था। वो ज्यादातर वक्त तस्बीह पढ़ने और इबादत में गुजारता, लेकिन इसके चेहरे से वो खौफ कभी न गया जो इस मनहूस रात इसके दिल में पैवस्त हुआ था। शादी के दिन जब पूरा घर खुशियों से महक रहा था, जाहिद को बार बार अपने कमरे में वही जली हुई लकड़ियों और सड़े हुए गोश्त की बो महसूस होने लगी। इसे ऐसा लगता जैसे कोई इसके कान में आकर कह रहा हो कि तुम्हारा कर्ज अब भी बाकी है। वलीमे की रात जब मेहमान रुखसत हो गए और जाहिद अपने कमरे में अकेला था, इसे अचानक महसूस हुआ कि इसकी दुल्हन जो आईने के सामने बैठी थी, इसका अक्स आईने में नजर नहीं आ रहा। इसने अपनी आंखें मिले और दोबारा देखा तो वहां वाकई कोई नहीं था, मगर इसे कुर्सी पर बैठने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि जाहिद के मुंह से भाप निकलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें खुद बखुद टेढ़ी होने लगे और छत के पंखे से खून के कतरे टपकने लगे। जाहिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा किसी नादीदा ताकत ने बाहर से मुकफ्फल कर दिया था। इसी लम्हे कमरे के कोने से वही लंबा साया नमूदार हुआ जिसने बरसों पहले शमशान घाट में इसका पीछा किया था। इस साये के हाथ में वही मिट्टी की थैली थी जो जाहिद ने इस रात उठाई थी। इस साये ने वो मिट्टी फर्श पर बखेर दी और देखते ही देखते वो मिट्टी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे पूरा कमरा शमशान घाट की जमीन में तब्दील हो गया हो। जाहिद की बीवी जब कमरे में दाखिल होने लगी तो इसे लगा जैसे अंदर कोई है ही नहीं। पूरा कमरा खाली था, लेकिन अंदर से जाहिद की दिलदोज चीखें सुनाई दे रही थीं। घर वाले जमा हो गए, कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर था इसने सबके कलेजे मुंह को ला दिए। जाहिद कमरे के बीचों बीच हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने इसे गिले से पकड़कर ऊपर उठाया हो। इसके पैरों के नीचे वही काली मिट्टी बिछी हुई थी और उसके पूरे जिस्म पर जले हुए निशानात उभर रहे थे, जैसे इसे किसी चिता पर लुटाया गया हो। घर वालों ने दोबारा इसी बुजुर्ग को बुलाया जिन्होंने पहले जाहिद का इलाज किया था। बुजुर्ग जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जाहिद की रूह और इस साये के दरमियान एक जंग छड़ी हुई थी। बुजुर्ग ने मुसल्ला पर बैठकर चलाकशी शुरू की और अल्लाह के कलाम की वो ज़रबें लगाएं कि पूरा घर लरज़ उठा। कई घंटों की जिदोजहद के बाद वो साया एक चीख मार कर गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो जाहिद की बोलने की कुव्वत हमेशा के लिए छीन ले गया। बुजुर्ग ने इंकिशाफ किया कि जाहिद ने इस रात शमशान घाट से जो मिट्टी उठाई थी वो दरअसल एक ऐसे तांत्रिक की राख थी जिसने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि इसकी राख को कभी कोई हाथ ना लगाए, वरना वो इसकी जिंदगी जहन्नम बना देगा। जाहिद ने अनजाने में इस तांत्रिक की रूह को बेदार कर दिया था। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि अब इसका एक ही हल है, जाहिद को खुद वो मिट्टी वापस इसी जगह रख कर आनी होगी जहां से इसने उठाई थी, वरना ये साया इसकी नस्लों का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगली रात जाहिद को नीम बेहोशी की हालत में इसी शमशान घाट ले जाया गया। इस बार उसके साथ शहर के कई आलम और मुहाफिज मौजूद थे। जब वो शमशान घाट के गेट पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। गेट के पास खड़े कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और आसमान पर काले बादल छा गए, हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था। जाहिद लरसते कदमों के साथ इस जगह पहुंचा जहां इसने वो गुनाह किया था। जैसे ही इसने अपने हाथों से वो मिट्टी वापस जमीन पर डाली, जमीन से एक गहरा शिगाफ नमूदार हुआ और वो तमाम मिट्टी अंदर चली गई। एक जोरदार हुआ का झोंका आया और शमशान घाट में लगी तमाम आग बुझ गई। इस दिन के बाद से जाहिद ने कभी मोड़कर इस तरफ नहीं देखा। वो अब भी हैदराबाद में ही रहता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर गूंगा हो चुका है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के वक्त इस शमशान घाट के करीब से गुजरे तो इसे एक गूंगे शख्स के रोने की आवाजें सुनाई देती है, जैसे वो दुनिया को खबरदार कर रहा हो कि कुछ सरहदें पार करने के लिए नहीं होती। ये सच्ची कहानी हैदराबाद के इन लोगों के लिए एक जिंदा इबरत है जो कदीम मकामात और शमशान घाटों को महज तफरीह या चैलेंज की जगह समझते हैं। आज भी हैदराबाद के इस शमशान घाट की दीवारें वही दहशतज़दा दास्तान सुनाती है। वहां का पंडित अब बदल चुका है, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि इस खास जगह पर आज भी रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां की मिट्टी अब भी किसी नए शिकार के इंतजार में प्यासी रहती है। ये वाकया हमें सिखाता है कि आलम अरवा और इंसानी दुनिया के दरमियान एक बारीक पर्दा है और इस पर्दे को छेड़ने का अंजाम सिवाय तबाही के और कुछ नहीं। जाहिद तो खामोश हो गया, मगर उसकी ये खामोशी आज भी हैदराबाद की गलियों में एक गूंज बनकर भटकती है।
हम अक्सर नादानी में इन दरवाजों पर दस्तक दे देते हैं जिनके पीछे सिर्फ तबाही होती है। याद रखिए, कायनात में कुछ पर्दे ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हर तजस्सुस की कीमत मिट्टी से अदा नहीं की जा सकती। कभी कभी रूहें भी दांव पर लग जाती हैं। खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे।